Good evening. Yeah, today we shall discuss about the synthetic rubber. In a previous lecture, we discussed about the natural rubber. So, natural rubber is obtained from rubber plant. We know that rubber plant can give white latex. Later on, it was confirmed by uh, scientists that natural rubber contains polymeric chain of isoprene. Isoprene. So isoprene has a character of polymerization. So isoprene this is the isoprene. Isoprene. This is the isoprene. 2-methyl butadiene. Isoprene. So this isoprene can polymerize and give a polymer having physical properties like natural rubber. So this phenomena was implemented in 19th century and physically means a polymer which was prepared by scientists in laboratory and the product was behaving like rubber. If I say rubber, means it is the natural rubber. So natural rubber also contains the polymeric chain of isoprene. So natural rubber is said as the isoprene. This is the isoprene. Isoprene. Now, just see, we can say synthetic rubber is polymer having properties like natural rubber. Natural rubber contains polymeric chain of isoprene. This is the isoprene. When this isoprene polymerizes, it forms polymer of this type. This type. N. This is the polymeric chain. And this polymeric chain is present in natural rubber, means in latex of the rubber plant. So when this polymeric chain of isoprene was isolated from natural rubber, so it was thought that why we cannot polymerize such type of the monomer to form a better quality of the rubber or better quality of the polymer having characteristic having physical properties like rubber. So this isoprene is one of the monomer which polymerizes to give a polymeric chain present in the
नेचुरल रबर। नेचुरल रबर में आइसोप्रीन एक मोनोमर है, यूनिट है, स्मॉल यूनिट, जो पॉलीमराइज करके बड़ी चेन बनाता है। ये चेन जो पॉलीमर चेन है आइसोप्रीन की, वह नेचुरल रबर में पाई जाती है। तो हम आइसोप्रीन की तरह के बहुत सारे कॉन्जुगेटेड डाइन का उपयोग कर सकते हैं कोपॉलीमर बनाने के लिए, जो बेटर क्वालिटी होगा। नेचुरल रबर अच्छा नहीं है, बेहतर नहीं है। इसका माने अच्छा सा मतलब है कि हमारे विभिन्न प्रकार के उपयोग में नहीं लाया जा सकता है। तो इन दिस वे वी कैन अंडरस्टैंड दैट द rubber is nothing but the polymeric chain of the isoprene natural rubber. So if we polymerize monomer in laboratory, so it is said that monomer having conjugated diene can co-polymerize with other monomer to form a copolymer called natural rubber. Sorry, called synthetic rubber. Synthetic rubber. Synthetic rubber is superior than natural rubber. So these are the synthetic rubber. Buna-S, which is also known as SBR, Buna-N, nitrile rubber, neoprene या GRM rubber, butyl rubber, GR1, you can say butyl rubber or GR1 rubber. So all these rubbers are synthetic rubber. Just I will tell you how these synthetic rubber can be prepared in laboratories. Very simple. The concept is same, that is the theory of the polymerization. So how these rubber, synthetic rubber can be prepared? So let us start about the Buna-S. Just see Buna. Buna means, what do you mean by Buna? Actually, what happened, Bu means butadiene. Butadiene, do you know what is meaning of the butadiene? But means 4 carbon atom in the molecule. Di means 2, in mane double bond. Means such a type of the molecule which has 2 double bonds in 4 carbon atoms. So that is the butadiene. So butadiene is a conjugate diene. As I have told you, isoprene is also 2-methylbutadiene. As I have told you that isoprene is 2-methylbutadiene. So in case of, this is the first Buna, yes, Buna, yes. Yes means styrene. So Buna, yes, it is a copolymer
of butadiene, and styrene. Butadiene and styrene. So how polymerization of butadiene and styrene can take place? Just see, this is the styrene. This is the styrene. Styrene. So styrene can copolymerize with butadiene. Just see how. This is the styrene. N moles of the styrene. This is the butadiene. N CH2 CH CH double bond CH2. This is the butadiene. So butadiene, it can polymerize. How? This bond may break and this bond may break. So you will get a product like this. CH bond CH2 bond CH2, this one bond CH double bond CH, दिस बॉन्ड, ये टूटा बॉन्ड, आधा बॉन्ड इधर आएगा, आधा इधर गया, फिर ये बॉन्ड टूटेगा, ये आएगा, तो ये हुआ, दिस इज द, देन CH2 लाइक दिस एंड लाइक दिस इज द N. This is the chain of Buna, yes. So Buna, yes, means it is a copolymer of butadiene and styrene. This is the synthesis of Buna, yes. Now we shall discuss about the properties of the Buna, yes. Properties of the Buna, yes. Properties of Buna, yes. Buna, yes, जो रबर है, इसकी क्या विशेषता है आप जानते हैं कि Buna, yes, जो है टायर आज के बनाने में प्रयोग करते हैं, तो क्यों करते हैं? ईट का माने ईट हैज हाई लोड बियरिंग कैपेसिटी. So this
rubber, it has high load bearing capacity. But there is a drawback also. It can swell. Number two, it can swell. तेल जो मिनरल ऑयल्स हैं, पेट्रोलियम ऑयल्स हैं, तो इनके द्वारा क्रिया होती है तो बुना यस रबर फूल जाता है, और जब यह स्वेल कर जाता है तो इसकी लोड बियरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है. तो ये जो स्वेल इन ऑयल एंड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, देयर आर सो मेनी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, अगर इस रबर को इसमें डाल दिया जाए तो ये फूल जाता है. तो ये कह रहा है कि बुना यस इट कैन स्वेल इन ऑयल एंड ऑल organic solvent, all organic solvents. There are so many organic solvent. अल्कोहल है, ईथर है, टॉलिन है, बेंजीन है, वो सारे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हैं जिसमें कि ये क्या करता है. दूसरी बात, लचीलापन. बुना यस का लचीलापन कम होता है नेचुरल रबर से. तो रीसाइलियंस, थर्ड प्रॉपर्टी, रीसाइलियंस ऑफ बुना यस is poorer than natural rubber. रीसाइलेंस प्रॉपर्टी माने लचीलापन. नेचुरल रबर में लचीलापन ज़्यादा है और बुना यस में लचीलापन कम है. इसके अलावा ये जो सिंथेटिक रबर है बुना यस, ये ऑक्सीडाइज हो जाता है बड़े आसानी से. ऑक्सीडाइज कराने का गुण हम सब जानते हैं, ओजोन में बहुत होता है. ओजोन, तो ओजोन it gets easily oxidized by ozone, O3. तो ये कॉमन प्रॉपर्टीज हैं जिस कॉमन प्रॉपर्टी के आधार पे हम ये कह सकते हैं कि नेचुरल रबर की जगह पे हम इस्तेमाल कर सकते हैं सिंथेटिक रबर का, और उसमें एक सिंथेटिक रबर है आपका बुना यस. दूसरी बात है कि ये जो
हमारे सिंथेटिक रबर हैं, इनका भी हम वल्कनाइजेशन करते हैं। इसमें भी हम वल्कनाइजेशन अगर नहीं भी करते हैं तो रीइंफोर्समेंट मटेरियल डालते हैं, जैसे कार्बन है, कार्बन पाउडर मिला दें। तो रीइंफोर्समेंट मटेरियल मिलाने से इसकी लोड बियरिंग कैपेसिटी बहुत बढ़ जाती है। तो हम अगर वल्कनाइजेशन न भी करें तभी जो है यह नेचुरल रबर से सुपीरियर होता है। ये जो एसबीआर है ये दो प्रकार से बनाया जाता है, कोल्ड एसबीआर एंड हॉट एसबीआर। कोल्ड एसबीआर मैक्सिमम वी प्रोड्यूस Buna yes by cold process. Cold process means temperature is controlled -18 to 5 degrees centigrade, and easy to operate and more valuable polymer resin is prepared. So therefore, most of the SBR means Buna yes rubber is prepared by cold process. So in this way, we can understand about the properties of the SBR. Now, usage. What are the applications? There are so many applications. So just see application of the Buna yes. रबर के उपयोग, इसमें कोई विशेष जानकारी देने की जरूरत नहीं होती है, हम ये जानते हैं, लेकिन फिर भी कुछ स्पेसिफिक बातें होती हैं जो कि हम रबर के बारे में जानना चाहेंगे कि ये जो आर्टिकल कोई चीज हमको रबर की दिखती है वो किस टाइप के रबर से बना होगा। रबर तो एक बेग टर्म है, सब चीज रबर है। एक्चुअली रबर नाम आया कहां से ये सब जानते हैं। नेचुरल रबर जो प्लांट है उसके लेटेक्स से चूंकि ये निकला था और उसका गुण था कि पेपर पे लिखे हुए पेंसिल के मार्क्स को वो मिटा दे, तो वह कहा गया ये रबर है। कोई भी रबर हो सकता है, लेकिन बाद में ये पता चला कि ये जो रबर हम कह रहे हैं एक्चुअली यह एक पॉलीमर है। किसका पॉलीमर है? जब उसकी एनालिसिस की गई नेचुरल रबर की तब पता ये चला कि आइसोप्रीन नाम का एक मोनोमर है। आइसोप्रीन माने 2-मिथाइल ब्यूटाडाइन। वो पॉलीमराइज होता है अंडर सर्टेन कंडीशन। तो एक हमको बिग चेन मिलती है, चेन ऑफ हाई मॉलिक्यूलर वेट। रबर का मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज्यादा होता है, तो हैविंग बिग चेन ऑफ हाई मॉलिक्यूलर वेट, and that was also called as a rubber. But later on, when it was known that when isoprene can polymerize, why not other conjugated diene can polymerize? Other, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 2-मिथाइल ब्यूटाडाइन है, तो सिंपली ब्यूटाडाइन ले लें, सिंपली ब्यूटाडाइन ले लें, ये भी पॉलीमराइज करेगा, पॉलीमराइज करता ही है। लेकिन और बेहतर अच्छा मटेरियल बनाने के लिए को पॉलीमराइजेशन किया, को पॉलीमर बनाया। जैसे हमने स्टाइरिन लिया, बुना यस में स्टाइरिन लिया, स्टाइरिन के साथ हमने ब्यूटाडाइन का पॉलीमराइजेशन करा दिया, तो हमको मिल गया क्या? बुना यस मिल गया।
एक एसबीआर, एक इलास्टोमर हम कहते हैं। इलास्टोमर का माने होता है ऐसा पॉलीमर जो रबर की तरह से व्यवहार करे, फिजिकल प्रॉपर्टी रबर जैसा होता। इसलिए इन सबों को भी, जितने भी ये पॉलीमर आप देख रहे हैं जो मैन मेड हैं, सिंथेटिक पॉलीमर नथिंग मैन मेड। तो यस बी आर जो है, ये बुना यस इज वन ऑफ द मैन मेड पॉलीमर prepared by copolymerization of butadiene and styrene. I have given properties of the Bunayas. Now come to the usage or application. Application. Number one, Buna yes is used in preparing टायर। टायर बनाने में हम बुनायस का प्रयोग करते हैं। कौन सा टायर? यू कैन से ट्रक टायर। ट्रक टायर। ट्रक टायर माने हेवी लोड वियरिंग टायर जो है हम बुनायस से बना सकते हैं। हम देखते हैं कि आजकल जो जूते का सोल होता है उसमें भी एक रबर इस्तेमाल होता है। बहुत पहले जूते के सोल में रबर का इस्तेमाल नहीं करते थे, लेदर का इस्तेमाल करते थे। क्वालिटी खराब होती थी। सोल माने नीचे तल्ला, सोल में लेदर का इस्तेमाल करते थे, लेकिन वह ड्यूरेबल भी नहीं था। पानी वगैरह पड़ने पर वो खराब भी होता था। लेटर ऑन ये जो सिंथेटिक रबर आया तो फिर हम जूते के तल्ले में हम उसका उपयोग करने लगे। दूसरी बात है होज पाइप। आपने नाम सुना होगा, होज पाइप। दो कनेक्टिंग चीजों को होज करते हैं। मोटर में भी होता है, रेलगाड़ी में भी होता है, आपकी बाइक में भी होज पाइप होता है। ये डिफरेंट टाइप का होज पाइप। तो होज पाइप में भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और जूते के सोल में कर सकते हैं। तो दूसरी बात है बुना yes can be used in hose pipe and sole of shoe। सोल ऑफ द शू। तो सोल ऑफ द शू में आप कर सकते हो। नॉट ओनली दिस, आपने घर के अंदर देखा होगा कुकर में एक गैस्किट लगती है, रबर का छल्ला, जिसको गैस्किट कहते हैं। मतलब गैस को बाहर, स्टीम को बाहर नहीं आने देती है। इसके अलावा तमाम मशीनरी हेड के अंदर जहां गैस बनती है या उसका इस्तेमाल होता है, इंजन चलता है, उसको भी रोकने के लिए हम गैस्किट का इस्तेमाल करते हैं। तो वो गैस्किट जो है उसको भी हम बना सकते हैं। इसके अलावा कारपेट ऊपर से आप देखते हैं कितना खूबसूरत है, बढ़िया है, सब कुछ है, लेकिन नीचे
जमीन के टच में जो पोर्शन होता है नीचे, जिसको तल्ला कहते हैं कारपेट का, उसको हम रबर सोलिंग करते हैं। तो कारपेट का जो नीचे का भाग है, जिसको कहते हैं कारपेट बैकिंग, क्या कहते हैं? कारपेट बैकिंग। तो कारपेट बैकिंग में भी इस्तेमाल जो रबर करते हैं वो रबर हमारा बुना यस है। तो वी कैन राइट हियर थर्ड, बुना यस कैन बी used to prepare gasket and carpet bag, carpet bag you can say carpet bag or carpet baking, like this. So these are the uses of the bunayas. Now one thing more, आपने ये देखा होगा जो इलेक्ट्रीशियन होते हैं, चाहे बिजली विभाग का ले लीजिए या प्राइवेट ले लीजिए, इलेक्ट्रीशियन के पास एक रबर ग्लव्स होता है मोटा सा। वो रबर ग्लव्स क्या है? रबर इज इंसुलेटर। तो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर के रूप में भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि बुनायस कैन बी यूज्ड एज electrical insulator, So in this way you can briefly understand about the bunayas, how bunayas can be prepared by polymerizing butadiene and styrene, and what are the physical properties. So you can write physical property and use it. So this is all about the simple, जिसे आप कह सकते हैं कि संक्षेप में बुना यस के बारे में हम बातें कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।